اور اجتماعیت کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی متحد ہو کر عبادت کریں۔ تو یہ جو باجماعت نماز ہے یہ اپنے آپ میں ہمیں ایک اجتماعیت کے لیے ٹریننگ کرتی ہے کہ ہم دن میں چاہے جہاں بھی رہیں، ہم دن میں اپنا کاروبار کرتے ہیں، ہم دن میں نوکریاں کرتے ہیں، ہم دن میں کالج اور اسکول میں رہتے ہیں، لیکن جب جب اذان ہوتی ہے اور مؤذن پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، تو ہم اللہ کی یاد میں ایک ساتھ مل جل کر سب بستہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اجتماعیت کی ٹریننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ سکتا تھا یہ بات کہ سال میں 30 روزے جب چاہے رکھ دیا کرو، جس کو جیسی سہولت ہو، تو سب سردی کے موسم میں 8-9 گھنٹے کے روزے رکھ کر اطمینان سے رہ لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم سب کو، پوری امت کو ایک مہینہ دیا گیا رمضان کے نام سے، اور کہا گیا کہ مل جل کر پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک ساتھ روزے رکھتا ہے، اور اس کے پورا جو ماحول بنتا ہے اس اجتماعیت کی برکت کے اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نظم آج اس دور غلامی میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہر آدمی اپنی الگ الگ دے کے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ دیکھیں گے تو زکوٰۃ کا نظام بھی ایک اجتماعی نظام تھا اپنے آپ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کی زکوٰۃ جمع کرتے تھے اور پھر وہ ایک ساتھ خرچ کی جاتی تھی مختلف مقاصد میں۔ خلفائے راشدین سارے زکوٰۃ ایک جگہ جمع کرتے تھے اور پھر وہ ایک ساتھ مختلف مقاصد میں خرچ کی جاتی تھی۔ اتنی اہم ہے یہ بات کی اجتماعیت کہ ایک قبیلے نے، کچھ گروہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ مدینہ کے مرکز میں نہیں بھیجیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول جو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تم سے جنگ کریں گے، کیونکہ تم یہ اسلام میں فتنہ پیدا کر رہے ہو، اجتماعیت توڑ رہے ہو اسلام کی۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان پر حملہ کیا، اور یہ جو فتنہ پیدا ہونے والا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اجتماعیت جو بکھرنے والی تھی، اس کو بکھرنے سے بچا لیا۔ بہت بڑے کنٹریبیوشنس میں ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ حج کی جو اجتماعیت ہے اس کا تو ذکر ہی کیا کہ ساری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس ایک مرکز توحید کے گرد طواف کرتے ہوئے جب ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ اجتماعیت کا کیسا روح پرور سما ہوتا ہے۔ تو وہ بات، یعنی عبادت کے تعلق سے دنیا کا عام تصور یہ ہے کہ یہ روحانی اور اسپریچول باتیں ہیں، اور اسپریچول باتوں میں ذرا الگ الگ رہنا، گوشہ نشین ہو جانا، سنیاس لے لینا، رہبانیت اختیار کر لینا، لوگوں کا ذہن، دنیا کا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ لیکن اسلام وہاں پر بھی اجتماعیت لے کر آتا ہے کہ فرض نماز پڑھو تو اجتماعیت کے ساتھ، فرض روزے رکھو پورا معاشرہ ایک ساتھ رکھ رہا ہے، فرض انفاق کرو، زکوٰۃ دو تو پورا معاشرہ تمہارے ساتھ، پورا امت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، اور حج کرو تو پوری اجتماعیت کے ساتھ۔ یہ جو ہماری عبادات ہیں وہ بھی اجتماعیت کی روح سے لبریز ہیں۔ اس کے بعد ہر فرد کو جتنا موقع ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، نوافل کا اہتمام کرے، نفل نمازیں پڑھے، نفل روزے رکھے، نفل صدقات اور انفاق کرے، عمرے کرے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ایک اجتماعیت کی روح ہماری عبادات میں اللہ تعالیٰ نے راسخ کر دی ہے۔ اور ہماری عبادات کی جو بہت ساری ہزارہ حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت اور مصلحت یہ اجتماعیت کی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں اجتماعیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور سمجھانا ہوگا۔ بہت اہم اور قیمتی باتیں یہاں پر ہمارے سامنے اتحاد امت کے حوالے سے آئی ہیں کہ جس دین نے اجتماعیت پر اتنا زور دیا ہے کہ نماز اور روزوں میں بھی اس اسپرٹ کو شامل کیا ہے، کیا یہ اس دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کر کے الگ ہو جائیں، اپنی الگ الگ صفیں بنا لیں اور ایک دوسرے پر کفر کے اور فسق کے فتوے داغنا شروع کر دیں؟ تو یہ جو ہے یہ بالکل ایک مذاق ہے دین کے ساتھ، اور ہمیں دین کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت قیمتی بات مفتی صاحب نے ہمارے سامنے رکھی کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہونا چاہیے، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بات جو ہمارے سامنے ہے اس کو بالکل گرہ میں باندھ دینا چاہیے۔ ہم میں سے بہت لوگ جو خوش دلی کے ساتھ، بہت نیک دلی کے ساتھ، بہت نیک نیتی کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ کاش سارے اختلافات ختم ہو جاتے، لیکن نہ یہ ممکن ہے اور نہ یہ فائدہ مند ہے۔ یہ جو اختلافات ہیں امت میں، یہ ہماری چوائسیز بڑھا رہے ہیں، ہمارے متبادل بڑھا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان اختلافات کو، جو تنوع کے اختلافات ہیں، یعنی دیکھیے اختلافات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ اختلاف ہے جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا سب سے فیوریٹ رنگ کون سا ہے، تو کوئی کہے گا لال، کوئی کہے گا پیلا، کوئی کہے گا ہرا، کوئی کہے گا کالا، کوئی کہے گا سفید۔ یہ بہت اچھا اختلاف ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ کہیں کہ نہیں ہمارا کالا رنگ فیوریٹ ہے، دنیا میں سے رنگ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اختلاف جو ہے یہ مبارک اختلاف ہے، یہ اختلاف تنوع ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ کی بات نہیں ہے۔ اور ایک اختلاف وہ ہے کہ کوئی کہے کہ بھائی میں خدا کو مانتا ہوں، کوئی کہے میں خدا کو نہیں مانتا، کوئی کہے میں 2 خدا کو مانتا ہوں، کوئی 4 خدا کو مانتا ہوں۔ یہ اختلاف غلط ہے، یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو امت میں جو اختلافات ہیں، جو قابل قبول اختلافات ہیں،
जैसे मसलक का इख्तिलाफ है या नमाज़ों के दरमियान जो इख्तिलाफात है कि हाथ कहाँ बांधना है, आमीन कैसे कहना है, ये वो इख्तिलाफात हैं, ये इख्तिलाफ तनव्वु कह सकते हैं आप इसको, कि ये ऐसे इख्तिलाफात है जो सब की सब वैलिड है। और इन वैलिड किस्म के इख्तिलाफात वो हैं जिसको उम्मत ने दुत्कार दिया है। जैसे कादियानियों ने कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेंगे, ये ऐसा इख्तिलाफ था जो मबगूज़ इख्तिलाफ था, इनको उम्मत से काट कर फेंक दिया। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं और उनके इख्तिलाफात को हमें बर्दाश्त करना चाहिए, हमें उनको जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। इन मौज़ूआत पर लड़ाई जो है वो नहीं करनी चाहिए। ये हम इस बात को गिरा में बांध लें। बहुत अच्छी मिसाल दी गई हमारे सामने कि इमाम शाफी जब कूफा तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक नमाज़ पढ़ के ये साबित कर लिया क़यामत तक के लिए कि नमाज ऐसे भी पढ़ी जा सकती है और वैसे भी पढ़ी जा सकती है। मेरी राय ये है, इमाम शाफी ने जो राय अपनी दी हैं उन मसलों को फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस खास मौके पे इमाम अबू हनीफा का मसला फॉलो करके बता दिया कि ये मसला गलत नहीं है, यहाँ इख्तिलाफ सही और गलत का इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि अफसल और गैर अफसल का इख्तिलाफ है, जिस पे मार काट जायज़ नहीं है। यानी एक इंसान जो है वो ये कहे कि अफजल और गैर अफजल के इख्तिलाफ पर वो उठ जाए मारने पीटने के लिए, तो दरअसल वो अफजल और गैर अफजल के इख्तिलाफ पर हराम काम करने पर आमादा हो गया। क्योंकि ये बात कि नमाज में हाथ ऊपर बांधना चाहिए या नीचे बांधना चाहिए, इसमें जो इख्तिलाफ है दोनों तरह की हदीसें मिलती हैं जैसा कि इरशाद हुआ। लेकिन इस बात पर इत्तेफाक है कि एक मोमिन को गाली नहीं दी जा सकती, इस बात पर इत्तेफाक है कि एक मोमिन का नुकसान नहीं किया जा सकता, इस बात पर इत्तेफाक है कि एक मोमिन का दिल नहीं दुखाया जा सकता, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो एक आदमी उन इख्तिलाफात का बहाना बनाकर जिनकी गुंजाइश शरीयत में मौजूद है वो काम करे जो इत्तेफाक से यानी इत्तेफाक राय से जो मजबूत है, जिस पर अल्लाह और उसके रसूल की वईदें हैं। तो ये कैसा मजाक है जो दीन और शरीयत के साथ हो रहा है। ये बात लोगों को समझाने की है, लोगों को बताने की है कि आप इख्तिलाफ तो करें लेकिन वो मुखालफत में नहीं बदलना चाहिए। उन इख्तिलाफी मौज़ूआत पर इल्मी बहस की भी गुंजाइश है, लेकिन उससे आगे बढ़कर अवाम में ये बहसें उछाली जाएँ और अवाम में लोग एक दूसरे को ताने दें, एक दूसरे के उलमा और बड़े लोगों पर सख्त किस्म के तबसरे करें, ये चीज़ जो है ये नाजायज़ है और ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इससे उम्मत का इत्तेहाद बिल्कुल उसका शिराज़ा बिखर जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम देखेंगे तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो कसरत है वहदत में, इसको हम जगह जगह पर देखते हैं और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरबियत की है। मिसाल के बस एक मिसाल मैं दूंगा, वरना ऐसी मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जंग खंदक के ज़माने का वाक़या है कि जब खंदक खोदी गई और बल्कि वो जंग मुसलमानों ने जीत ली, क्योंकि कुफ़ार अपने मुहासरे से बिल्कुल तंग आ गए और अल्लाह ने ऐसी आंधियाँ भेजी कि उन्होंने कहा कि अब हमारा मुहासरा करके फ़ायदा नहीं है। वो चले गए और लोग अपने हथियार उतारने लगे। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी कुरैज़ा जो अंदर से मुसलमानों को धोखा दे रहे थे यहूद, उन पर हमला करने के लिए कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि फ़ौरन कूच करो बनी कुरैज़ा की तरफ और हर आदमी जो है वो असर की नमाज वहाँ पढ़े। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म था। अब लोग निकल गए फ़ौरन। जब सहाबे किराम निकल गए वहाँ के लिए तो रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया और अब इख्तिलाफ हुआ सहाबा किराम के दरमियान। देखिए इख्तिलाफ, मुखालफत नहीं, आपस में इख्तिलाफ हुआ, लोगों ने राय का तबादला किया। कुछ ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ हुक्म दिया है कि असर की नमाज वहाँ जाके पढ़नी है, तो हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो वहाँ पहुँचेंगे पढ़ेंगे, रसूल का हुक्म है, दीन हमसे रसूल के ज़रिए पहुँचा है, रसूल ने साफ साफ कहा है, हम ये बात मानेंगे। उन लोगों ने नमाज वहाँ उनकी गड़ियों में जाके अब बनु कुरैज़ा की बस्ती में पहुँच कर वहाँ पर नमाज अदा की। वक्त हो गया था मगरिब का, लेकिन असर की नमाज वहाँ पर जाकर अदा की, रसूल का हुक्म है ये कहते। बाकी जो दूसरा ग्रोह था उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था ये कहने का कि तुम वहाँ पर नमाज़ पढ़ो जाके, कि हम फ़ौरन निकल जाएँ, ज़रा भी देर ना करें। तो हम तो फ़ौरन निकल गए, लेकिन ये मकसद नहीं था कि नमाज़ छोड़ दी जाए, तो उन्होंने रास्ते ही में नमाज अदा कर दी। यानी दोनों ग्रोह में से कोई भी रसूल की नाफरमानी नहीं कर रहा है, लेकिन मंशाए मुतकल्लिम क्या है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या मकसद क्या है, ये समझने में इख्तिलाफ हुआ और उस इख्तिलाफ के साथ दो रायें हुई। दोनों रायों पर आधे आधे लोगों ने अमल किया और जंग में फतह नसीब हुई, लोग आए वापस और फिर अल्लाह के रसूल उनके साथ सामने पेश किया मामला कि हम में से आधे लोगों ने ये अमल किया है, आधे लोगों ने ये अमल किया है, सही कौन था। अल्लाह के रसूल ने दोनों को वैलिड करार दिया कि ये दोनों इज्तिहादात सही हैं अपने आप में, नहीं कहा कि ये सही है, नहीं कहा ये सही है। तो पता चला कि ये इख्तिलाफ जो है ये जायज़ इख्तिलाफ है। क्यों ये जायज़ इख्तिलाफ है? क्योंकि अल्फाज में उन दोनों रसूल के अल्फाज में उन दोनों इक़दामात की गुंजाइश मौजूद थी। तो आज के जो इख्तिलाफात हैं नमाज में और दीगर चीज़ों में जो हम पाते हैं, उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो तमाम वो चीज़ें हैं जो हदीस में मौजूद हैं, रसूल से साबित हैं। हाँ, उसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो फिर हमारे उलमा कराम और कायदीन जो हैं वो उसके दिफा के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए उठेंगे। जैसे कि जब फित्ना कादियानियत उठा तो लोगों ने उसका दिफा किया और उनको मिल्लत से अलग कर दिया। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको इन इख्तिलाफी मबाहिस में पढ़ने के बजाय उन चीज़ों पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है और उन चीज़ों पर अपनी मुहिम चलाने की ज़रूरत है जिसमें सारे मुसलमानों का आपस में इत्तेफाक है। वो क्या बुनियादें हैं? मिसाल के तौर पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह एक है, हम सब मुत्तफ़िक़ हैं कि आखिरी रसूल जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम सब मुत्तफ़िक़ हैं कि क़यामत आने वाली है और हमें अपने अमाल का हिसाब किताब देना है। तो ये जो इत्तेफाक की बुनियादें हैं हमारी, इन इत्तेफाकी बुनियादों पर हमें आगे बढ़ना है और लोगों के सामने वो चीज़ें पेश करनी है, तौहीद, रिसालत और आखिरत की दावत उनको देनी है। ये हमारा काम है, ये हमारा फ़र्ज़ मंतवी है। दीन की जो बुनियादें हैं उनमें हम सब मुत्तफ़िक़ हैं, उन बुनियादों को नाफिज करना, समाज में कायम करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। वो सबसे पहला मरहला उसका ये है कि हम अपने आप पर दीन कायम करें। अगला मरहला ये है कि हम अपने ख़ानदान पर दीन कायम करें। उससे आगे अपनी बस्ती और अपने महल्ले की बात आती है और फिर ये बात होते होते शहर और मुल्क से होते हुए दुनिया तक पहुँचती है। जहाँ तक हमारा जोर चलता है, जहाँ तक हमारा बस चलता है, वहाँ तक हम अल्लाह के दीन को कायम करने की कोशिश करें। ये काम हमें सबसे पहले अपनी ज़ात पर करना है और अपनी ज़ात से उठते ही ये मामला इज्तिमाई बन जाता है। ख़ानदान भी एक इज्तिमाइयत है, महल्ला एक इज्तिमाइयत है, तंजीम एक इज्तिमाइयत है और पूरी दुनिया जो है वो अपने आप में एक इज्तिमाइयत है। और आपको हर जगह पर मिलजुल कर दीन को गालिब और कायम करने की कोशिश करनी है और ये काम आपको अपनी ज़ात से शुरू करना है। और ये काम सारे मुसलमान उस वक्त कर सकेंगे जब, जैसा कि इससे पहले कहा गया, कि लोग इख्तिलाफी बातों पर एक दूसरे से मुबाहसे में अपना पूरा वक्त ज़ाया कर देते हैं। वो उन बातों पर बहस करें या उन बातों की तरफ लोगों को दावत दें जिनमें इत्तेफाक है। वो बुनियादें क्या हैं? वो बुनियादें जैसा कि अर्ज़ किया गया कि तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो दीन की बुनियादें हैं, उनमें हम सबका इत्तेफाक है और उन्हीं बुनियादों की तरफ हमें लोगों को बुलाना है। ये हमारा काम होना चाहिए और इसी चीज़ की तरफ हमें अपने जो मुसलमान भाई हैं उनको बताना चाहिए कि आपकी तवज्जो, आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन का जो फोकस था वो यही था। उनका फोकस, उनके दरमियान इख्तिलाफात थे लेकिन वो इख्तिलाफात उनका फोकस नहीं थे। नऊज़ुबिल्लाह, आपने कभी ये नहीं देखा होगा तारीख़ में कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उठ कर लोगों को अपने जो इख्तिलाफी, जिस बात में उनका इख्तिलाफ है उसकी तरफ लोगों को बुला रहे हो कि आओ आओ मैं सही बोल रहा हूँ, और नऊज़ुबिल्लाह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु गलत बोल रहे हैं, या नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गलत बोल रहे हैं, या नऊज़ुबिल्लाह फलां उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु गलत बोल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी ने कोई बात पूछी तो अपनी राय बता दी, लेकिन मुत्तहिद उस बात पर हैं जिस पर लोगों का इत्तेफाक है। अताअत से कभी पीछे नहीं हटे। इन्हीं गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है कि तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो मक्का में हज के मौके पर वो थे वहाँ पर, और उन्होंने नमाज के मामले में इख्तिलाफ हो गया कि नमाज कसर पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मतलब था कि मैं बहुत दिनों से यहाँ पर हूँ मौजूद, तो मैं कसर नहीं करूँगा, मैं सफ़र में नहीं हूँ। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की राय ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया है तो करना चाहिए आपको। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब नहीं उनकी राय ये नहीं थी और नमाज उनको पढ़ानी थी, तो लोगों ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से कि आप तो अलग नमाज़ पढ़ेंगे, हम आपके पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम आपसे मुत्तफ़िक़ हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने डांट दिया उन लोगों को, कहा कि मेरी जो राय थी वो मैंने बता दिया है, अब इमाम वक्त है, वो खलीफा वक्त है, वो जो करेगा मैं उसके पीछे वही काम करूँगा। मेरा काम था बता देना, आगाह कर देना, मानना या नहीं मानना या जो कुछ है वो उनका काम है, और जिस तरह से वो अब नमाज़ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उसी तरह से मैं नमाज़ पढ़ूँगा। तो ये जो चीज़ है, ये स्पिरिट हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी, इताअत की, इज्तिमाइयत की। और ये स्पिरिट अगर हम भूल गए तो फिर हमारा जोर जो है वो दुनिया में से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जिस्म की एक मिसाल हमारे सामने आप रखिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेहाद इत्तेफाक की अहमियत बताने के लिए जिस्म की मिसाल का यूज़ किया है। जैसा कि हम देखते हैं, कहा कि मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानिंद है कि एक हिस्से को दर्द होता है तो पूरा जिस्म जो है वो दर्द महसूस करता है। इसी जिस्म को आप देखिए कि पूरी यूनिटी के साथ काम होता है। आपकी तरफ अगर कोई तलवार या कोई भाला या कोई चाकू आपकी तरफ ऐसे आएगा तो हाथ रोकता है। हाथ ये नहीं कहता कि वार जो है वो आपकी तरफ जा रहा है, मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों अपने आप को खतरे में डालूँ। नहीं, हाथ आता है उस वार को रोकने के लिए। तो ये जो चीज़ है ये बताती है हमें कि किस तरह से जज्ब वाहिद होता है और वो पूरा प्रोटेक्ट करता है अपने आप को। अगर हाथ अपनी मर्ज़ी का काम करने लगे, पैर अपनी मर्ज़ी से काम करने लगे, दिल और दिमाग अपनी मर्ज़ी से काम करने लगे और कोई कोहेजन ना हो, कोई यूनिटी ना हो, कोई इज्तिमाइयत ना हो, तो फिर हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो
मुसलमानों का मामला तो वही है कि उनके अंदर कोहेजन, उनके अंदर यूनिटी, उनके अंदर इत्तेहाद, उनके अंदर इत्तेफाक, ये चीज़ें लाजमी हैं, वरना उम्मत की जो असल मानवीयत है वो ख़त्म हो जाएगी, वो खो जाएगी और हर आदमी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करता हुआ नज़र आएगा। और इसीलिए फ़र्क है और इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि हम करोड़ों की तादाद में हैं, 1 अरब की तादाद है मुसलमानों की, क्यों उनके अंदर ज़ोर नहीं है? क्योंकि ज़ोर भीड़ में नहीं होता, ज़ोर तंजीम में होता है, ज़ोर जमात में होता है, ज़ोर फ़ौज में होता है, भीड़ में ज़ोर नहीं होता। भीड़ तो कभी जोश आया तो यहाँ रेले की तरह बह गई, जोश आया वहाँ रेले की तरह बह गई, कुछ हादसा हुआ तो आपस में सब ख़त्म हो गए, इधर उधर बिखर गए। लेकिन जो जमात होती है, जो तंजीम होती है, जो फ़ौज होती है, उनके अंदर एक डिसिप्लिन होता है और वो एक इताअत, एक कायद के पाबंद होते हैं और उनका एक ख़ास मकसद होता है। तो ये चीज़ मकसूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमान भीड़ नहीं थे, बल्कि वो एक तंजीम थे, एक जमात थे, एक फ़ौज थे और इस चीज़ से उनको तशरीह दी जा सकती है। तो ये वो चीज़ है जो उनकी क़ुव्वत का राज था। और ऐसी क़ुव्वत जब पैदा होती है तो कम से कम नुकसान के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। और जब इंसान सिर्फ भीड़ बन जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करके भी कुछ भी नहीं हासिल कर पाता। बहुत बड़े मुहक्किक हैं, सीरत निगारी पर भी तहक़ीक़ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत इनक़लाब के नाम से किताब लिखी है सैयद असद गिलानी साहब ने। उन्होंने बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनक़लाब लेकर आए अरब में, उस इनक़लाब की बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन उस इनक़लाब की 2 खूबियाँ बहुत गैर मामूली हैं। एक खूबी यह है कि दुनिया में जितने इनक़लाबात आए हैं सब यकरुख़ इनक़लाबात हैं। कोई इनक़लाब सिर्फ सियासी है, कोई इनक़लाब सिर्फ माशी है, कोई इनक़लाब सिर्फ समाजी है, कोई इनक़लाब सिर्फ मजहबी है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटल इनक़लाब लेकर आए और वो भी सिर्फ 23 साल की मुद्दत के अंदर अंदर। दुनिया में इतनी तेज़ी से और इतना मुकम्मल इनक़लाब कभी नहीं आया। दूसरी खूबी उन्होंने ये बताई कि दुनिया में जितने इनक़लाब आए बहुत छोटे, बहुत अजीब व गरीब किस्म के थे, लेकिन उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आता है तो उसमें हज़ारों लाखों लोग मार दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान को मारने के लिए जल्लाद कम पड़ जाते हैं तो मशीन बनाई जाती है कि कैसे एक साथ एक गर्दन कटने के बजाय एक साथ 10 गर्दनें काटी जाएँ और लाखों और करोड़ों लोग मार दिए जाते हैं। 1917 में रूस में इनक़लाब आता है तो इस इनक़लाब तो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग मार दिए जाते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो टोटल रेवोल्यूशन अरब में आता है, गिन कर बताया है सैयद असद गिलानी साहब ने कि 459 शुहदा हैं मुसलमानों में से और 459 मारे गए मुशरिकों में से और ये इनक़लाब आ गया। टोटल 1000 की तादाद से भी कम है जो जानी नुकसान है और इतना बड़ा इनक़लाब आ गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये उस इज्तिमाइयत की, बाबरकत इज्तिमाइयत की बदौलत मुमकिन हुआ जिसके अंदर प्लानिंग थी, जिसके अंदर एग्जीक्यूशन था, जिसके अंदर इताअत थी और वो तमाम चीज़ें जो एक आला तरीन इज्तिमाइयत के लिए ज़रूरी है वो हमें दिखती हैं। उसी इज्तिमाइयत के मॉडल को इख्तियार करने की हमें ज़रूरत है। हमें अब भीड़ नहीं बनना है, बल्कि हमें एक जमात, एक तंजीम सही मानों में बनना है। इताअत के दामन को नहीं छोड़ना है। अल्लाह उसके रसूल के साथ हमारी वाबस्तगी है, जो हमारा ताल्लुक़ है, उसको मज़ीद मजबूत करना है। और जो नुस्खा बयान किया गया आयत सूरह आल इमरान की आयत के जिस टुकड़े के साथ आगाज़ हुआ था आज दिन का, जिस टुकड़े के साथ मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है, उसमें ये नुक्ता पोशीदा है कि आप कैसे मुत्तहिद होंगे। इंसान की तरजीहात अलग अलग हैं, इंसान की मसरूफियात अलग अलग हैं और इंसान के अपने पसंद नापसंद मिजाज अलग अलग है। लेकिन कहा गया कि नुस्खा है मुत्तहिद होने का तुम्हारे पास। वो नुस्खा क्या है कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लें। ये अल्लाह की रस्सी क्या है? लोगों ने कहा कुरान मजीद है, सुन्नत रसूल है, मुसलमानों की इज्तिमाइयत है। ये सारी चीज़ें मुराद हो सकती हैं। हम अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ लें और अल्लाह की किताब का इससे अच्छा क्या मॉडल होगा जो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, जो खुद सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में पेश किया। तो ये कुरान सुन्नत को अगर हम मजबूती से पकड़ लें और अपने ज़ात पर, अपने ख़ानदान पर, अपने महल्ले पर और हर जगह हम इसको नाफिज करने लगें, इसी की तरफ दावत देने लगें, तो इंशाअल्लाह ये दुआ है कि ये जो इज्तिमाइयत है ये एक बार फिर बाबरकत साबित होगी। क्योंकि कुरान वही है जिसके बलबूते पर अरब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब लाया, बर्पा किया। ये कुरान वही है जिसके बलबूते पर उठे सहाबा किराम तो पूरी दुनिया पर छा गए। तो आज अगर उम्मत मजलूम है, मकफूर है, मजबूर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नौज़ुबिल्लाह कुरान की तासीर ख़त्म हो गई। मतलब ये है कि उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान का जो हक़ अदा करना था वो ये उम्मत नहीं कर रही है। तो हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि वो कुरान का हक़ अदा करने लगे और मिलजुल कर इज्तिमाइयत के दामन को थाम ले और इज्तिमाइयत के दामन को थाम कर वो कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर जद्दोजहद करे। डॉक्टर अहमद तुतूंजी कहते हैं, और ये बहुत मशहूर मक़ूला है हमारे सामने, कि जब इंसान एक होता है और इंसान एक होता है तो वो उनकी जो कोशिशें होती हैं इनफरादी, वो एक और एक दो हो सकती हैं। लेकिन जब दो इंसान मिलकर इज्तिमाई कोशिश करते हैं तो वो दो होते हैं लेकिन 11 की नताइज उनको हासिल होते हैं। तो
ऐसे ही जब हम सब मिल कर कोशिशें करेंगे तो नताइज बहुत बढ़ जाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग आगे हैं, लेकिन ये कि अगर हम मिलजुल कर इज्तिमाई तौर पर कोशिशें करें तो हम अपने महल्ले की, अपने शहर की और अपने मुल्क की जो काया है उसको पलट सकते हैं। जो पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया कह लीजिए कि वो हक़ की मुतलाशी है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के फसादात हैं जो ज़िंदगी के हर शोबे में छाए हुए हैं, पड़े हुए हैं, और दुनिया जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ जाएँ। कुछ लोगों ने कहा कैपिटलिज्म होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कम्युनिज्म होना चाहिए, हिटलर ने कहा नाज़िज़्म होना चाहिए, लेकिन दुनिया हर इज़्म की तरफ घूमते घूमते परेशान है, प्यासी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक प्यासे आदमी के पास पानी ना हो तो वो पानी समझकर, शरबत समझकर जहर भी पी सकता है, पेट्रोल भी पी सकता है, मिट्टी का तेल भी पी सकता है, लेकिन अगर उसको पानी दे दिया जाए तो वो उसकी अहमियत को महसूस करेगा, उसकी कदर को महसूस करेगा। बहुत बड़ी नाकामी है हमारी ये कि हम इस मुल्क में, अगर मुल्क की बात करें तो हज़ारों साल से इस मुल्क में मौजूद हैं, कम अज़ कम 1000 साल से, 800-900 साल से इस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन हमने इस्लाम के आब हयात को इस कौम के सामने उस तरह पेश नहीं किया जैसा कि पेश करने का हक़ था। हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे मक्का में, लेकिन उन्होंने दावत दीन का काम किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब ईमान लाए तो पूरा फोकस उनका ये था कि किस तरह से ईमान की दौलत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल जाए। हमारा भी जो फोकस होना चाहिए, जो तवज्जो होना चाहिए, वो यही होना चाहिए, ये दो फोकस हमारे हों कि जो मुसलमान हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह हों और सालेह इज्तिमाइयत से वाबस्ता हों, अपने इख्तिलाफ़ात जो कि गैर ज़रूरी और गैर हक़ीक़ी किस्म के इख्तिलाफ़ात हैं उनको भुलाकर आपस में यकजुट होकर इस्लाम के लिए जद्दोजहद करें। ये एक फोकस हमारा है। और दूसरा फोकस ये होना चाहिए कि वो लोग जो अल्लाह को नहीं जानते, रसूल को नहीं जानते, कुरान को नहीं जानते, वो जाने कि अल्लाह जो है वो मुसलमानों का अल्लाह नहीं है बल्कि पूरी कायनात का अल्लाह है जिसने उनको ही पैदा किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं हैं बल्कि उनकी हिदायत का भी सामान उन्होंने किया है, रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है बल्कि हुदल लिन्नास है, उसको अगर वो भी पढ़ेंगे तो उनको भी हिदायत और कामयाबी नसीब होगी। ये काम अगर हम इज्तिमाई तौर पर करेंगे इस ट्विन एजेंडे के तहत तो उम्मीद की जाती है कि एक सालेह इनकलाब जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सालेह इज्तिमाइयत से वाबस्ता होने, इज्तिमाइयत के तमाम तकाज़ों को पूरे करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वाक़िअ दावाना।